मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। इंकलाब की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में।
दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। India. There is a navy blue wheel in the center having 24 equal sticks indicating the drum chakra of the great King Ashoka. The tricolor of flag flutters majestically. The three colors on our national flag, saffron, millions who died fighting for it, and peace and prosperity that prevails in our nation. The Indian soldiers does not fight because he hates who is in front of him. He fights because he loves who is behind him. At this Republic Day celebration, a big arrangement made by the Government of India in New Delhi at Rajpath, in front of India Gate. Every year, a chief guest, that is Prime Minister of other country, is invited to fulfill the purpose made perfect. A nation's culture resides in the heart and the soul of its people. Rejoice in the glory of nation and remembering the sacrifice of our freedom fighters. Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach, and the mission of India has to guide humanity, said Swami Vivekananda. Let's make a promise that we will not let the hard sacrifices of our brave freedom fighters go in vain. We would work hard to make our country the best in the world. May the brave leaders of our glorious nation guide us to peace and prosperity so that we can hold our high and be proud of our country. We salute the work they did for this country on this day. Today is the historical day to remember our national heroes, and freedom protects the rights of the people inside the country.
So let us celebrate does not fly because the wind moves it. It flies because of the last breath of each soldier who died protecting it. And memories in our souls, let's salute the nation on this Republic Day. This Republic Day, let's pledge to have a faith in our abilities. Let's faith in underlie our beliefs. As Mahatma Gandhi said, our beliefs become thoughts, our thought become words, our heart becomes our actions become. Let us read our attainments, let us think about our mistakes, let us march forward to a great tomorrow. Now get ready for tremendous fun. Freedom is not given, it is taken, says Subhash. मैं आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारी महाविद्यालय की छात्र करती हूँ। खुदावन तेरे नाम से आगाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पर नाच करती भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करती हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करती हूँ। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए जाने मन जान के वास्ते निशान मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद। Of Englishmen being vanished, freedom should be in thoughts, freedom should be in speech, freedom should be in girls roaming on the हवा कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। इसी के साथ स्वागत गीत लेकर आ रही है हमारी छात्रा अध्यापिकाएं। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारे ग मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारे ग मग मगरे नी सारे ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, देवों की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 सारे ग मग मगरे मी सारे सारे ग मग मगरे मी सारे गरे सा। जय हिंद। Please have a huge round of applause for such outstanding song. Now I would like to call Shahina for speech. महोदय, बाहर से आए हुए गणमान्य नागरिकों, शिक्षक गण व हमारे विद्यालय के आए हुए
शिक्षकगण और हमारे महाविद्यालय की मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और गणतंत्र दिवस पर आज मैं गणतंत्र दिवस के संदर्भ में भारत के परिप्रेक्ष्य को, वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। भारत देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। भारत देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है, सरकार से ऊपर नहीं है। इन सबको इसके दायरे में रहकर ही काम करना होता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। यह कठोर व लचीला है। इनकी इन विशेषताओं का श्रेय इनकी निर्वाचित सभा को जाता है, जिसमें 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्वाचित सभा का अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए जानकार थे। संविधान सभा के अथक प्रयास व डॉक्टर अम्बेडकर की कठिन परिश्रम की भावना के अनुरूप ही भारत एक प्रभुता संपन्न, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य बना। देश की स्वतंत्रता के उपरांत हमारा उद्देश्य एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जनतांत्रिक भारत का निर्माण करना था। ऐसा भारत जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और छुआछूत और दंडिता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के लिए कोई स्थान न हो। पर सवाल यह है कि क्या आजादी के इन 7 दशकों के बाद भी हमने इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है? आज सवाल यह है कि क्या आजादी के इन 7 दशकों के बाद भी क्या हमने इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है? क्या समाज में व्याप्त छुआछूत और शोषण को मिटाया जा सका है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को उनका वाजिब अधिकार मिला है? क्या आर्थिक विषमता की खाई खत्म हुई है? क्या महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है? क्या देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है? ऐसे ढेरों सवाल है जो आज भी मुंह बाए खड़े हैं। निसंदेह इन 7 दशकों में देश ने उल्लेखनीय उन्नति की है। कृषि उत्पादकता बढ़ी है, उद्योग धंधों का विस्तार हुआ है, शिक्षा और विज्ञान संचार के क्षेत्र में उन्नति है। लेकिन सच यह भी है कि देश आज जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं हो सका है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। सरकार के आंकड़े बताते हैं देश में 27 करोड़ लोग गरीब है, 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है। राहतकारी है कि सरकार ने सबको घर उपलब्ध कराने की क्रांतिकारी फैसला लिया है। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीका की तुलना में भारत में 2 गुने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 43% बच्चे कम वजन के हैं। दलित समाज के बच्चों की तो बात ही क्या करें, उनके तो हालात और भी खराब है। हम आतंकवादी के सर पर कफन चाहते हैं, हम हर आतंकवादी के सर पर कफन चाहते हैं। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। देश अभी भी आतंकवाद, अलगाववाद, युद्ध, विद्रोह, जासूसी गतिविधियों, साइबर क्राइम, मुद्रा, काला धन जैसी चुनौतियों से मुक्त नहीं हो सका है। देश आज भी बाहर से प्रायोजित आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की सेना और जवान सीमा से लेकर देश के आंतरिक जहादी आतंकवाद से लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं। सब कानून की वजह से आतंकवाद को कुचलने में कामयाबी मिली है। महज किरदार ही क्यों खुद में एक कहानी बनो, महज किरदार ही क्यों खुद में एक कहानी बनो। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, पहले हिंदुस्तानी तो बनो। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, पहले हिंदुस्तानी तो बनो। सांप्रदायिक राजनीति ने देश की जनता को राह से भटका दिया है। इस सांप्रदायिक राजनीति ने
क्या मुस्लिम ये हिंदुस्तान सबका है। इंसान बनने की आदत डालो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम ये हिंदुस्तान सबका है। सच ये भी है कि गणतंत्र की स्थापना के 7 दशक के बाद भी देश के तमाम राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए धर्म निरपेक्षता की आड़ लेकर सामाजिक एकता को भंग करने की फिराक में, यही नहीं वे अपने निज स्वार्थों की पूर्ति का जहर उगल रहे, व्यवस्था पर अनावश्यक दोष मंड रहे। यह उचित नहीं है। उन्हें समझना होगा कि सियासत से बड़ा देश होता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि देश में बच्चों, गरीबों, महिलाओं पर अत्याचार तो थमा है, लेकिन पूर्णतः कम नहीं हुआ, पूर्णतः बंद नहीं हुआ है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो उन्हें निशाना बना रहे, और यही सत्ताधारी लोग अपनी कुर्सी की जड़ गरीब और सहयोग के लोगों से सींच रहे। को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की, सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की, जब अगर इंसान को हर इंसान दिवस फिर से आया है। जय हिंद, जय भारत। Is a progress, working together is a success. Let's move to a other performance, that is dumbbells. I want to call dumbbell girls. सावधान, विश्राम, सावधान। फर्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थर्ड एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फोर्थ एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। फर्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4। डंबल्स का उपयोग शारीरिक व्यायाम के लिए किया जाता है। इससे भुजा, कंधे और छाती की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसी वजह से ये प्रणाली विद्यालयों में करवाई जाती है, ताकि बच्चों में अनुशासन की भावना और खुद पर अनुशासन की अत्यावश्यकता होती है, जो एक शिक्षार्थी के जीवन में अत्यावश्यक तत्व है। चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में। Leazim is a folk dance from Maharashtra. Leazim dancers carry a small music
musical instrument with jingling cymbals called the lazim. After legs are fitted, which produce a jingling sound the dancers use while classical dancing. The dance is frequently used as a fitness drill by schools in Maharashtra. Many calisthenic moves and can be quite strenuous. Lazim is more of a vigorous physical exercise and drill than a dance. This was used more as a form of exercise than dance. Lazim is cool as well as part of fitness regime. The first Lazim performance to an international audience was presented at the 9th Asian Games. What a coordination shown by the Lazim girls. A team that is not a group of people who work together. It is a group of people who trust each other. The coordination of the team shows the unity in diversity in India, in which one E stands for achieves and M stands for more. Moreover, that is together, everyone working together is a success. What a coordination shown by the Lazim girls. What a lovely performance. Patriotism is fundamentally a conviction that a particular country is the best in the world because you were born in it. Great. Your country becomes great because of your pride in it. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our heart, and memories in our souls. Let the spirit of Republic Day spread across the year. Freedom is not given, it is taken. Leaders of this glorious nation guide us to peace and prosperity so that we can hold our heads high and be proud of our country. We salute the work they did for this country on this day. Today is the historical day. Today we are celebrating the 73rd Republic Day of our nation. We know that India got independence on 15th August 1947 and then the Constitution of India was made in 26th November. स्वागत की कड़ी में मैं हमारे महाविद्यालय के सीताराम जी तारा सर को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और राजेंद्र जी नायना पूर्व प्राचार्य माडीबाई कॉलेज का तिलक वे माला अर्पण दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका क्योंकि ये हमारी महफिल की शान है। आज के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर शंकर लाल जी जाखड़, डीन महर्षि दयानंद शास्त्री विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य BR मिर्दा PG कॉलेज नागौर, श्री हरिराम जी राड जिला कोषाधिकारी जी, श्री पवन कुमार जी काला, श्री पूर्णमल जी बेनीवाल साहब विंग कमांडर, KR जाजड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी नानिया पूर्व प्राचार्य माडीबाई महाविद्यालय नागौर, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान के समस्त स्टाफ, कुछ
बाहर से पधारे हुए गणमान्य नागरिक, बहने और प्यारे छात्राध्यापिकाएं, आज का ये महत्वपूर्ण दिवस, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्रीमान शंकरलाल जी जाखड़ साहब का, कि जिन्होंने उनके विभाग के सबसे बड़े मंत्री अर्थात उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव आज यहाँ होते हुए भी उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से निकाल करके इस संस्थान को समय दिया। आप संस्थान के पूर्व सचिव भी हैं। श्रीमान हरिराम जी राठ साहब से पहली बार मुखातिब हुआ, केवल बात नहीं हुई, एक मैसेंजर के थ्रू इन्होंने मेरे आह्वान को स्वीकार किया। इनके लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से यदि ये छात्राध्यापिकाएं आपको आहूत करती है तो आप अपना समय निकालेंगे, ऐसा। इसलिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, साधुवाद, और किन शब्दों में इनकी तारीफ की जाए वो भी कम होगी। ये 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का पवित्र संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान मात्र एक पुस्तक नहीं है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में गीता, बाइबल, महाभारत आदि लोग जो हैं अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन प्रत्येक भारतीय को अपने संविधान के प्रति क्या उसमें अधिकार और कर्तव्य हैं। हम सब अधिकारों के लिए तो प्रतिदिन इनकलाब जिंदाबाद, ये मांगे पूरी करो, वो मांगे पूरी करो, रोज सड़कों पर नारे लगाते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक भारतीय को संविधान का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। और इनके चित्र भी हैं, महाभारत के चित्र भी हैं, गांधी जी के थॉट्स भी हैं और बहुत कुछ, और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि चित्रकार राजस्थान के रहने वाले थे। अब हम सब ये मांग करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं? कुछ हमारा जो कर्तव्य है, लेट समय चीज नहीं, 44वें संविधान संशोधन में जो है धारा 51 के, धारा नहीं, अनुच्छेद 51 के में संविधान के भारत के नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी जोड़े गए। तो उन कर्तव्यों की ओर हम ध्यान दें तो अधिकार देश हमें दे रहा है। इसलिए हम पढ़ें, लिखें और संविधान में उल्लिखित बातों का ध्यान रखें। संविधान हमें बहुत कुछ दे रहा है, क्योंकि ये बोलने की आज़ादी आखिर दी किसने? संविधान में। तो मैं मेरी बात संविधान की प्रस्तावना को आपके सामने दोहरा करके समाप्त करूँगा। संविधान की प्रस्तावना अभी जो है महामहिम राज्यपाल महोदय जहाँ कहीं भी जाते हैं वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके शपथ दिलाते हैं। शपथ तो मैं आपको नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे और जो है इस स्तर तक संविधान के जानकार भी हैं। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना सारी संविधान की आत्मा को बात करके सारा सारांश एक साथ निचोड़ करके रख दिया है। वो इस प्रकार से है, और ये किसी व्यक्ति, राष्ट्रपति या जो है प्रधानमंत्री की जो है आवाज़ नहीं है। भारत के संविधान को भारत की जनता ने स्वीकार किया है। तो मैं प्रस्तावना आपके सामने दोहराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति और बीच में छोड़ रहा हूँ
आज दिनांक 26 नवंबर है, नहीं हो है तो 26 जनवरी, लेकिन प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और आत्मार्पित करते हैं भारत की जनता, अर्थात इसको लागू करने वाली भारत की जनता है। तो इस दिवस को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में अच्छी तरह से मनाएं और आप लोगों ने यहाँ शिरकत की और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय हिंद। सर के द्वारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम उस शख्सियत को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी। इस पावन पर्व पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ। श्री नाथूराम जी मिर्दा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और आईबी के डीजीपी थे, और के.आर. बागड़िया सर, जिन्होंने इस संस्थान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये संस्थान अपने आप में एक गरिमा लिए हुए संस्थान है, जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। और इस संस्थान की स्थापना 1992 में हुई। देखिए, इसके उपलब्धियों को आप खुद ही देख सकते हैं कि 1992 से इसकी स्थापना हुई, जो आज भी लगातार निरंतर चलती जा रही है। और उसके आगे इसकी उन्नति की और क्या बखान करूं कि 2008 में इन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बीएड की भी रचना कर दी, जो आज अपने सामने ही है कि हम सब यहाँ इकट्ठे उसी बीएड कॉलेज में हुए हैं। और हमें ज्ञात है कि ये कॉलेज हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना पढ़ाई में हमें अग्रसर करता है, जिसके अंतर्गत ही हमारे जो यहाँ के शिक्षक हैं, हमारे प्राचार्य सर हैं, जो हमें एक अभिभावक के रूप में प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए अनुशासित होकर एक अनुशासन के दायरे में रहकर आगे बढ़ने के लिए हमें अग्रसर करते हैं। और ये संस्थान जिस तरह हमारी शिक्षा के लिए समर्पित है, तो मैं इससे आशा कर सकती हूँ कि ये संस्थान भविष्य में भी और बुलंदियों को प्राप्त करेगा। हमारे प्राचार्य जो हमें समय समय पर इतने अच्छे दिशा निर्देश देते हैं, जो कठोर होने के साथ साथ हमारे संविधान की तरह लचीले भी है, उन प्राचार्य के होने की वजह से ये संस्थान इतने अग्रसर हो रहा है, उन्नति की ओर हो रहा है। तो हमारे प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार तालियां। और अब हम आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुति का अनुमोदन करते हैं। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसे ही उजल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हिंदुस्तान की शान का है। नाचना जिंदगी होती है, नाचना खुदा की बंदगी होती है। कुछ पल झूम के देखो, खुशी में तो लगेगा नाचना जिंदगी होती है। महफिल को जगमगाने आ रही है अपनी एकल नृत्य प्रस्तुति के साथ। चले चलो रितिका सोनी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। जीत हो कि हार हो, बार बार बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार कोई से जीत न पावे। चले चलो जीत जावे जो टकरावे, चले चलो कल घोर अंधेरा छावे। चले चलो कोई रात में ना थम जावे। चले चलो गली उठी पाँचों मिली
तुम दूध मांगोगे हम चीर देंगे। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शेर गलबान गीत के साथ आ रही है मोनिका राठौर। जोरदार। क्या कमी है तुझको लालों की, सरहद पर रखवालों की, सर रख के मरे तेरी गोद में जब रहे आंखें खुली मत वालों की। जहाँ अजमत पे तेरी आछाई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदे लौटाई। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता, हम लड़ते हैं सीना तान के, जाबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के, बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर तेरे गलवान के। मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में, मेरी सोच में तू आबाद रहे, तू मेरे वतन सबसे पहले, मेरा सब कुछ तेरे बाद रहे। मैं जाऊं अगर तेरे खातिर मर, मेरी मौत भी मुझ पे नाज करे, हमदर्द जमी एक पल भी नहीं, तेरे इश्क से दिल आजाद रहे, तेरे इश्क से ना आजाद रहे। जो करना पड़ा तेरा कर्ज अदा, तैयार मिलेंगी सांसें सदा, जो करना पड़ा तेरा कर्ज अदा, तैयार मिलेंगी सांसें सदा, निकलेंगे कफन को बांध के, जाबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के। दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जला है कितने दीप बुझाकर, मुश्किल से मिली है ये आजादी, तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर, हर दुश्मन। At the stroke of midnight hour, when the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. A very good morning to our highly knowledged Principal Sir, honorable guests, respected teachers and fellow students. These words by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru will forever remain at an edge in our society and history. After the struggle of centuries being ruled by the Britishers, India was claiming the freedom it always deserved. Men, women and children rejoiced to call this land their own for the very first time. And today, when we're on the urge of celebrating the 73rd Republic Day that commemorates the adoption of the Constitution, we must ask ourselves a few questions. Are we respecting the struggles of the forefathers and ancestors who gave us freedom? Are we valuing the freedom that we have today? Are we really understanding that we as the citizens of the country have big responsibilities to abide by? I don't want to dwell onto the past, but I really want to talk about the future. I want to speak about the very four core values that will help us to respect the freedom and we all enjoy today. The very first responsibility that we have as a citizen is the responsibility of doing. What does it mean? By doing, I simply want to put out the act of action. We need to take actions whenever needed, whenever required. Voting in every election, whether it's local or it's general. Taking charge of cleanliness of our surroundings under Swachh Bharat Abhiyan. Doing good to the society and helping everyone in whatever way we can. It's our turn to
It's our turn to give the society back what we've taken from it since ages. Secondly, the responsibility of speaking up. With freedom comes a huge responsibility to hold accountable those who are in power. If we see anything in our environment that is not fine, it is our responsibility to speak up and urge strong actions. A citizen's voice is the most powerful voice that can build up and break the policies and also governments at times. Let us use this properly and very wisely. It's a strong power, we must use it. Third is the responsibility of upholding freedom. Let's keep this in mind that there are many communities in India who still don't enjoy freedom even after independence. If you are somebody who enjoys your right irrespective of your caste, your gender, your education, or the financial status that you have, you are somebody who has to recognize your privilege and be available in larger and bigger fights for equal rights for such people. It's a moral duty. Last but not the least, it is the responsibility of knowing. You can't be a responsible citizen without knowing about what's happening around you. You have to be involved in shaping our country's democracy and keeping ourselves informed about our rights, our responsibilities, and news regarding thousands of us. There are thousands of things happening that impacts us and many people around us. We need to know every bit of it. Let us pledge today that not only on Republic Day, but every day as a citizen of our beautiful country, every single duty that will take to build a strong, peaceful and active community is going to be fulfilled by all of us. Concluding, I would just say, with freedom in our minds and strength in our words, with freedom in our minds and strength in our words, the pride in our souls and pureness in our blood, let's salute our tricolor flag. Let's salute our tricolor flag on this Republic Day. Let's rejoice in the glory of our nation and do not forget to pay our tributes to the martyrs. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा. Thank you everyone. Have a very happy Republic Day. जय हिंद. एयरफोर्स गगन में शौर्य का दास्तान लिखता है. जितना सशक्त होगी वायुसेना उतना सुरक्षित उस देश का आसमान दिखता है. अंबर में चांद सितारे लगते हैं इनके साथी, पर लड़ाकू विमान के आगे इनका तेज कहाँ टिकता है. इसी के साथ आसमान की परी लेकर आ रही है हमारी छात्रा अध्यापिका पूजा नगवारिया. कार्यक्रम को आगे चलाते हुए निरंतर गति देते हैं.
मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। हम इसी के साथ ही मैं मुख्य अतिथि जी श्री हरि राम जी राज जिला कोषाधिकारी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आए और अपना संक्षिप्त। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण और शाला परिवार के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं और महाविद्यालय की बालिकाएं, मैं आज आपको 73वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं तो ये सफल तभी होगा कि जब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ या जिस दिन पहला गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, उस दिन जो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता, इस तरह की जो समस्या हैं वो आज भी देश में मौजूद हैं। तो हम आज के दिन ये संकल्प लें कि हम इन समस्याओं को जड़ से समूल नष्ट करेंगे, तभी हमारे गणतंत्र दिवस की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्टार्ट करूँगा। इसी के साथ मैं आगे संजू एंड पार्टी को ग्रुप नृत्य के लिए आमंत्रित। तेरी बात जिंदा
for solo dance performance on song तेरी मिट्टी में मिल जावा। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। To our honorable guest, Mr. Puranmalji Beniwal, Wing Commander, Indian Army, to enlighten us with his words. Good morning, children. आदरणीय मंचासीन अतिथि महोदय, स्कूल कॉलेज के स्टाफ, and my dear children and B.Ed students, बहुत खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के। और आज बहुत बड़ा दिन है 26 जनवरी। मेरे से पहले वक्ताओं ने इस दिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपके प्रिंसिपल महोदय ने भी वो बात बहुत
गहराई से बताई थी कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर हमें मनन करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें बहुत ध्यानपूर्वक मनन करना पड़ेगा। आप देख रहे हो आज सब जगह हर दिन न्यूज़पेपर में डे टू डे सिटी एरियाज़ के अंदर झंडे लिए खड़े हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने लग जाएंगे, उस दिन मेरे को पूरा विश्वास है कि समर्थता की ओर बढ़ेंगे हम। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस लार्ज स्केल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें बुलाया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान, मेरी शान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम करते हैं ये वादा मां, तेरी आंखों में का सोना आने देंगे, दे देंगे जान। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे केसरी आसमां हरी चक्र तेरा कह रहा, हमसे नहीं रुकना कभी। मुश्किल हो चाहे कितनी बड़ी पर हार न मानेंगे हम। सपनों की तेरी ऊंची उड़ाने होने न देंगे कम। हम करते हैं ये वादा मां, तेरी आंखों में का सोना आने देंगे, दे देंगे जान। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे प्यारे से बच्चे द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई। अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अरुणा सोलंकी अपने एकल नृत्य के साथ भारत की बेटी। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम मेरे भारत की
ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जाती ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करेगी तेरी बारी। मेरे भारत की बेटी हंसने जहाँ पे भारी, मेरे भारत की बेटी दिल जाने साथ हमारी, मेरे भारत की बेटी जीती हो जीती हो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पवन जी काला, रिटायर्ड मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड रोटरी क्लब के सचिव। सर आप बताएं और हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित कीजिए। नमस्कार। मंच पे विराजे हुए संस्थान के प्रधानाचार्य श्री दल्लाराम जी, टीओ श्रीमान राड साहब, डॉक्टर शंकर लाल जाखड़ प्रिंसिपल मिर्जा कॉलेज, विंग कमांडर PM बेनीवाल साहब, श्रीमान इनानिया साहब, अन्य मंचस्थ महानुभाव, शिक्षकगण और विद्यार्थियों, मैं संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम किया और उसमें मुझे भाग लेने का अवसर दिया। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। आज के दिन हमें संविधान मिला। हमारा जब संविधान बना तो दुनिया के जो जानकार थे उन्होंने कहा कि इससे अच्छा संविधान दुनिया में किसी देश का नहीं है। हमारा लिखित संविधान सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माना गया। कालांतर में उसमें कुछ आवश्यकता महसूस हुई। अब तक हमारे संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। उसमें 2 संविधान संशोधन आज हमें याद रखने चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाऊं, कंठस्थ करना है इनको। एक तो 42वां संशोधन, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट वाज मेड इन 1976, जिसमें संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए थे उस टाइम कर्तव्य नहीं दिए गए थे। तो 42वें संशोधन के जरिए 1976 में नागरिकों को कर्तव्य दिए गए कि आपको कर्तव्य भी निभाने हैं। फिर सन 2002 में यह महसूस किया गया कि एक कर्तव्य छूट गया है। 10 कर्तव्य 1976 में जोड़े गए और 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया, जो ये था कि हर अभिभावक की ये कर्तव्य होगा कि वो 14 साल के बच्चों तक को उसको शिक्षा की सुविधा प्रदान करावे। तो मेरा निवेदन इतना सा है आज इस गणतंत्र दिवस पे कि जो 42वां और 86वां जो संशोधन हुआ था, जिसमें हमें कर्तव्य भी दिए गए थे, हम उनके प्रति भी जागरूक हो। इतना ही कह के धन्यवाद आपको। पुनः इस महफिल को अपनी आवाज से सरोकार करने आ रही है अपना गीत लेकर मधु एंड पार्टी। जीवन है जो काम देश के आन सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आन सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना मन महका न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आन सका।
जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से सांस चली, जिसकी अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह बली, वह क्या सबूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। मुनिवर दधीचि हो गए अमर, जिनकी हड्डियों से वज्र बना, जिनकट समाज का दूर किया, देकर पावन शरीर अपना। वह मानव क्या समाज के हित जो प्राण प्रसून चढ़ा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रोधा, ज्ञानी शत्रु भगा दिया। वह नाविक क्या जो तूफानों में नौका पार लगा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह जीवन जिसने महलों को छोड़ दिया, रोटियां घास की खावन में आजादी का संघर्ष किया। वह देश प्रेम क्या देश प्रेम जो कंटक पट अपना न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। अपने विचार प्रकट करने आ रही है छात्र अध्यापिका प्रतिभा सिंह। जोरदार Happy Republic Day to all, Honorable Chief Guest, Principal Sir, teachers and my fellow friends. I am obliged and honored to give a speech on Republic Day. Today, all of us have gathered here to celebrate the Day of Unity of India, that is Republic Day. Today we are celebrating 73rd Republic Day of our nation. We all know that India got independence on 15th August 1947, but the nation did not have any constitution of its own. After many discussions and considerations, a committee headed by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, and then the Constitution of India was made on 26th November 1949. However, on 26th January 1950, the Constitution of India was executed for all Indians. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar is the father of the Indian Constitution. Our Constitution is longest composed constitution in the world. Since 1950, we are celebrating Republic Day every year with lots of joy and happiness. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country sacrificed their lives to give us the Purna Swaraj. It's because of their struggle today we are living in a democratic country where each citizen has a right to equality, a right to freedom, a right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. The Constitution declares that India is a socialist, secular and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty and fraternity. It also gives us our rights and duties as citizens. On this Republic Day, I hope that no matter who we are, rich or poor, a powerful politician or a regular citizen, we continue to respect these basic principles and values given to us by our Constitution.
I want to end this speech by saying that India is a democratic country and the citizens enjoy the privilege to elect their leaders to lead the country. Although there has been a lot of improvements till now, it can also be said that we have been facing a few problems such as pollution, poverty, unemployment and COVID from last 2 years. One thing we all can do is to promise each other that we will become a better version of ourselves so that we can contribute to solving all these problems and making our nation a better place. Thank you. द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। वो बाग बा बेकार जहाँ तितलियाँ ना हो, वो कारवाए खाक जहाँ मिस्कियाँ ना हो, वह घर आंगन सुनसान शमशान के जैसे, वो मकान क्या मकान जहाँ बेटियाँ ना हो। इसी के आगे गुर्जर बहनें अपना गीत प्रस्तुत करने आ रही हैं। तीनों गुर्जर बहनों का तालियों के साथ स्वागत है। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, ओ हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हा 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 एक है, ओ हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, ओ हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक भारतीय है। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, ओ हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हमेशा याद रखना,
से बढ़कर जनगण मन। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले के तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, हर तेरी जिंदा झूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। इसी के साथ ही मैं श्री राजेंद्र जी इनानिया पूर्व प्राचार्य माडीबाई कॉलेज से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने संक्षिप्त। रेस्पेक्टेड प्राचार्य दल्लाराम जी चौधरी साहब, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी छात्राध्यापिकाएं, आए हुए अतिथिगण, आज 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी बच्चों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि इस गणतंत्र को
अक्षुण बनाए रखने के लिए अपने को एक शपथ लेनी पड़ेगी कि धार्मिक असमानता इस देश में है, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पहनावे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां हैं। इन सब को एक रखने के लिए अपन आज शपथ लें कि अपन सब एक रहेंगे, तभी ये गणतंत्र दिवस मनाना अपना सार्थक रहेगा। ज़्यादा भाषणबाजी में कुछ नहीं है। और बच्चे जो अब आगे जा रहे हैं, ये सेकंड ईयर बीएड करके, बच्चों से भी यही कहूँगा कि शिक्षा जो आपको दल्लाराम जी और शिक्षक गणों ने अच्छी शिक्षाएं दी है, तभी अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ देखने को आज मिल रही है अपने को। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो कितनी अच्छा लगा, अभी इंग्लिश में 2 बालिका छात्रा दीपिका ने इंग्लिश में बहुत तगड़े, तो मैं कह रहा था पूर्णमल जी बेनीवाल साहब को, मैंने कहा ये संस्कृति अपने में आ गई है। इतने दिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपन बच्चों को भेज रहे थे कि भाई इंग्लिश सीखे, तो बच्चों का अच्छा मतलब उच्चारण इंग्लिश में बहुत शानदार उच्चारण देखने को मिला। और अब बच्चे बच्चियाँ आगे आ रहे हैं, अच्छे अपनी संस्कृति को बनाए रखें। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं संगीता इनानिया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ एक सुंदर गीत प्रस्तुति के साथ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब गायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब गायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपन लाश बिछा दी, संगीन पे धड़ कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, कुर्बानी। थी खून सा लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा
Banda Government College, Nagod. Welcome our sir with a huge round of clapping. आज के मोजीज मामा, मेरे सभी साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, कहूँगा मैं, अभी आप शिक्षक नहीं हो, विद्यार्थी हो। आप बेटे एक बार सावधान हो जाए, टाइम था वो बहुत ले लियो और दलाराम जी जानबूझ मनला रखिया है, ये वास्ते था ज्यादा कौन भी। सबसे पहले 73 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं हृदय के अंतर्तल से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं बच्चों के साथ कई बार शेयर भी करता हूं सर। ये कोई रेलवे स्टेशन पे चाय की थड़ी लगा मिली, ठेलो लगा मिलियो, चाय बेचा करते हो, बीरो एक टाबर है जो IAS बन गया। जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि भाई आप IAS कैसे बने, हमने सुना है कि आप 14-15 घंटे पढ़ते थे, तो 15-15 घंटे के अंदर आप थकते नहीं थे क्या? तो उस बच्चे का क्या जवाब था? बच्चे ने कहा कि मेरा जो बाप है वो मेरे सपने को साकार करने के लिए 24 घंटे वहाँ खड़े खड़े लोगों को चाय पिला सकता है, तो क्या मैं मेरे बाप के सपने को साकार करने के लिए 13-14 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता? आज जिस दिन के लिए बेटा अपने यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये खैरात में नहीं मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है। उनके बहुत ड्रीम थे, तब जाकर के प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर के देश के लिए न्यौछावर हुए हैं। मेहरबानी करके हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, न्यौछावर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे अतिथियों ने और ये बिटिया जो यहाँ संचालन कर रही है, इन्होंने जिक्र किया है कि हम हमारा कर्तव्य ठीक से निभाए। जो जिम्मेदारी आप अभी विद्यार्थी के रूप में हैं, कोई आगे चल करके आप शिक्षक के रूप में होंगे या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होंगे, जिस भी भूमिका के अंदर होंगे, विंग कमांडर हमारे बीच में विराजमान है, बैंक के मैनेजर हमारे बीच में विराजमान है, और भी कई अतिथि, दलाराम जी आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है, जिनके नेतृत्व के अंदर ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ। तो खारो बोलने को स्वभाव हूँ। हम यहाँ NSS का कैंप लगाते थे ताउसर के अंदर, कई बच्चे यहाँ मेरे सामने विराजमान है जो वॉलंटियर्स रही हुई है। वहाँ एक स्कूल के अंदर 7 शिक्षिकाएं अपन मातृशक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होते हैं। सशक्त होंगे कैसे जब हम खुद ही सशक्तिकरण के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम हमारी भूमिका नहीं समझ रहे हैं। 7 शिक्षिकाएं और 5 बच्चे, विचार करना हो। और वो सातों के साथ हमने 3 दिन तक आई विटनेस, हम गवाह थे उस बात के लिए कि सिवाय आना, मीटिंग का काम करना, आपस में बातें करना और घर चले जाना। Is it the part of duty? Do you agree? तो बेटा आप आगे चल करके शिक्षिकाएं बनेंगे। और मैं अभी हरिराम जी राड मेरे साथी रहे हुए हैं, आज मुझे फक्र हो रहा है कि मेरा साथी मेरे साथ तो मंत्र शहीद कर रहा है, जो ट्रेजरी नहीं और भी कई तरह की भूमिकाएं ले रखी है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि शिक्षक से बढ़ करके कोई पोस्ट नहीं है, शिक्षक से बढ़ करके कोई पोस्ट नहीं है, बशर्ते कि उसमें गुरुत्व हो, बशर्ते कि उसके कम कुछ करने का जज्बा हो। तो बेटा ये बहुत ही बेहतरीन सेवाएं हैं। कई मेरे स्कूल के साथी, मैं जब कार्यक्रम के अंदर जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम भी कॉलेज के अंदर जो है वो अध्यापक बनना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम बढ़ नहीं पाए। मैंने कहा दुर्भाग्य से नहीं, आप सौभाग्य से नहीं बढ़ पाए। ये आप लोगों का सौभाग्य था कि आपके पास रॉ मटेरियल मिला, कच्ची सामग्री मिली। अगर आप चाहो तो उसको कुंभकार के रूप में घड़े का रूप दे सकते हो, ना कि पक्की पकाई भोजिया आवे। हम कोई ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। जो स्कूल के मेरे साथी हैं उनकी भूमिका हमारे से बेटर है, दैट्स आई एग्री। और हम जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत इस मंच के ऊपर जो है आपके सामने विराजमान है। तो बहुत ही जोरदार कार्यक्रम, मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बेटा साइना ने जो यह प्रस्तुति दी थी शुरुआत के अंदर, ये अभी तेजास्थली के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर भी इसने पदक लिया, बताता है, तो जोरदार इसके लिए तालियां हो जाए। मैं भाषण को रिपीट करना नहीं चाहूंगा, इसने आज के देश के हालात के ऊपर जो भाषण दिया है, आई डू एग्री विथ यू,
आई डू एग्री विथ यू, इसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं। जितने मेरे साथी हैं और मेहमान भी है, एक एक बात तोड़ करके बिना आप लोगों का टाइम जाया किए आपने बातें कही है। बातों को जैसे आज के दिन संविधान को अंगीकार किया था, वैसे आप इन बातों को अंगीकार कर लेना, तो बेटा आपका भविष्य सुधर जाएगा। अपनी व्यवस्था जो भी है वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। देश के अंदर आज कल ही अब आप परसों अखबार के अंदर देख रहे थे, हमें लग भी रहा है कि जो गरीब है वो ज्यादा गरीब हो रहे हैं और जो अमीर है कोरोना काल के अंदर भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रहा है जगह जगह। आज भी मैं देखता हूँ छुआछूत चल रहा है, अस्पृश्यता चल रही है, कहीं और कुछ राह गला पे जा रहे हैं। सोल पर्पज ये है कि हमारी कुर्सी रहनी चाहिए, इसके अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उन मंसूबों को भी जो है आप बेटा समझो और असल के अंदर सशक्त बनो। केवल कहने के लिए नहीं, आप अपना जिस जगह जिस पोजीशन के अंदर आप हो, आप अपना अनुकरणीय आचरण जो है वो समाज के सामने पेश करो, तो बेटा परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो बातों से कुछ होना जाना नहीं है। आप लोगों ने हमें इज्जत दी, सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, हो जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की ममता के रूप में है। आप शानदार ये चित्रकारी आप देख रहे हैं, ये केवल चित्रकारी नहीं है, भावों का पुंज है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये जो संस्कार जो कृष्ण देख रहे हैं, ये सब ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही टीचर और ऐसी भामाशाओं का योगदान है। और ये मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी अवसर मिले, मैं अभी बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द मिर्जा कॉलेज, ऐसे जो शिक्षक बैठे हैं उनसे जा करके मांगने की मांगी थोड़ी आदत भी पड़ चुकी है। लाखों रुपया बढ़ाकर पूरा संस्था में लगा ही दिया, तो
हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि जब भी अवसर मिले, क्योंकि शिक्षा से बढ़ करके कोई दान दूसरा हो नहीं सकता, तो ये अपने को एक परिवेश गांव के अंदर अपन देख रहे हैं जगह जगह पैसे लुटाए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। और हम लोगों का प्रेफरेंस, क्योंकि जो भी परिवर्तन आना है वो शिक्षा के माध्यम से आना, चाहे व्यक्ति को ले लो, चाहे समाज को ले लो, चाहे राष्ट्र को ले लो, परिवर्तन जो भी होगा वो शिक्षा के माध्यम से होगा। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का जोश और जज्बा आप लोगों के दिल में बढ़ा देगा और आप संस्था के साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दो श्रीमान दुलाराम जी सर और हमारे यहाँ पधारे हुए अतिथियों, आप सभी को नमस्कार और हार्दिक आभार, और यहाँ विराजमान छात्र अध्यापिकाओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरा ये एडमिशन यहाँ ग्रामोत्थान कॉलेज में हुआ, और यहाँ इतना प्यार मिलता है सर का, सभी का। और मेरे को और सबसे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सर अभी तक हम लोगों का नाम भी याद रखते हैं और हमें हर प्रोग्राम पर बुलाते हैं। इसके लिए मैं सभी स्टाफ का और हमारे प्रिंसिपल सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं सर, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक व्यवहार में चेंज मिलेगा, जो आप पहले थे उससे कहीं गुना आप बढ़ते हुए जाओगे यहाँ से। ये दूसरों को पता नहीं चलेगा, आपके अंदर एहसास पैदा होगा एक कि हम बार बार वहाँ जाएं। कॉलेज में जब भी आपको याद करने का मौका मिले, आप सब यहाँ पधारे, ये एक अंदर का एहसास होता है। इसी के साथ में इस खूबसूरत मौके पे आप सभी के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तस्वीर हो, तुम दुनिया की तस्वीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो, तुम दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां, चांद सितारे तुम्हारे हाथों में, एक दिन होगी बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको, तोड़ सके ना दुश्मन जिसको, तुम ऐसी जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो, तुम दुनिया की तस्वीर हो, तुम दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, तुम रोतों को हंसाने आई हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आई हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आई हो। जो रूठी तस्वीर बदल दे, जो रूठी तस्वीर बदल दे, तुम ऐसी तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो, तुम दुनिया की तकदीर हो। तुम हो इसे कुटिया की दीपक, जग में उजाला कर दोगे, बोली नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो, तुम दुनिया की तकदीर हो। जय हिंद, जय भारत। वो सराहने और देखने और मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं। ये संस्थान आप सभी का हार्दिक आभार मानता है और संस्थान की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद। से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे कार्यालय में नाश्ते वगैरह का प्रोग्राम रखा गया है, तो वे वहाँ पे उपस्थित हों, और सभी आए हुए मेहमान, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि उधर रूम में आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रगान शुरू। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता।
दाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। एक एक लाइन, एक उधर, एक इधर चलते रहो। आ जाओ सब आ जाओ। एक ही देना, दो कोई देना। बच्चे अरे अंदर दो है। हाँ नहीं पैकेट सबको दे रहा है, कोई दे नहीं।